Hardware Objectives. اس لیسن کو کرنے کے بعد آپ جان جائیں گے کہ کمپیوٹر ہارڈ ویئر کیا ہے، اس کے کون کون سے کمپوننٹس ہیں اور ان کمپوننٹس کے فنکشنز کیا ہیں۔ ہارڈ ویئر، آپ پہلے لیسن یعنی کمپیوٹر بیسکس میں جان چکے ہیں کہ کمپیوٹر ہارڈ ویئر کیا ہے۔ کمپیوٹر ہارڈ ویئر وہ چیزیں ہیں جنہیں یا تو آپ چھو سکتے ہیں یا پکڑ سکتے ہیں، جیسے کہ ماؤس، کی بورڈ، پرنٹر وغیرہ۔ آئے اس سلسلے میں مزید جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب آپ جو اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، جو کہ ایک ڈبے کی مانند نظر آ رہا ہے، اصل میں بڑی مفید چیز ہے۔ اسے سسٹم یونٹ کہتے ہیں۔ سسٹم یونٹ میں کمپیوٹر کا ہر وہ حصہ لگا ہوتا ہے جو اس کو چلاتا ہے، اس کے مختلف حصوں کو کنٹرول کرتا ہے اور کمپیوٹر استعمال کرنے والوں کو مختلف فیسلٹیز یا سہولیات فراہم کرتا ہے۔ اس کو کمپیوٹر کی کیسنگ یا کورنگ بھی کہتے ہیں۔ اسے کیسنگ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ کمپیوٹر کے اندرونی حصوں کو ڈھانپ کر رکھتا ہے اور انہیں ہر قسم کے بیرونی دباؤ سے بچاتا ہے۔ آئیے ہم سسٹم یونٹ کو کچھ تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ یہ ایک عام سسٹم یونٹ ہے جو کسی بھی سطح پر آسانی سے کھڑا کیا جا سکتا ہے۔ ایسے سسٹم یونٹ کی کیسنگ کو ٹاور کیسنگ کہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے کمپیوٹر کی کیسنگ اس سے مختلف ہو اور اس میں لگی ہوئی چیزوں کی جگہ بھی مختلف ہو۔ سسٹم یونٹ کی سامنے والی سائڈ پر آپ کو یہ کچھ پورٹس، لائٹس اور بٹنز نظر آ رہے ہیں۔ سسٹم یونٹ پر لگے مختلف بٹنز میں سے یہ بٹن پاور بٹن کہلاتا ہے۔ اس بٹن کی مدد سے کمپیوٹر کو آن یا آف کیا جاتا ہے۔ اس کو آن کرنے کے لیے اس بٹن کو انگلی سے دباتے ہیں۔ دیکھیے اب یہ کمپیوٹر آن ہو رہا ہے۔ سسٹم یونٹ پر لگی ہوئی لائٹس یہ بات ظاہر کرتی ہیں کہ کمپیوٹر چل رہا ہے یا نہیں، اور چل رہا ہے تو اس پر کوئی کام ہو رہا ہے یا نہیں۔ یہ ایک ڈی وی ڈی ڈرائیو ہے۔ ڈی وی ڈی روم سسٹم یونٹ کے اس حصے میں ڈال کر استعمال کی جاتی ہے۔ ڈی وی ڈی روم کے بارے میں آپ پہلے ہی جان چکے ہیں۔ اس کے نیچے لگے ہوئے چھوٹے سے بٹن کو دبانے سے اس ڈرائیو کا ٹرے باہر آ جاتا ہے۔ سی ڈی یا ڈی وی ڈی کو ڈی وی ڈی ڈرائیو کی ٹرے پر اس طرح رکھا جاتا ہے اور دوبارہ اسی بٹن کو دبانے سے ڈی وی ڈی ڈرائیو کے اندر انسرٹ ہو جاتی ہے۔ ڈی وی ڈی کو ڈرائیو سے باہر نکالنے کے لیے بھی یہی بٹن دبایا جاتا ہے۔ اس کو دبانے سے ٹرے باہر آ جاتا ہے اور ہم ڈی وی ڈی اٹھا کر بٹن دوبارہ دبا دیتے ہیں، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ یو ایس بی ڈسک یا فلیش ڈسک بھی آپ کے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ اسے بھی استعمال کے لیے سسٹم یونٹ کے مختص حصوں میں لگایا جاتا ہے، جسے یو ایس بی پورٹ کہتے ہیں۔ اس وقت آپ سسٹم یونٹ کی بیرونی سائڈ پچھلی طرف سے دیکھ رہے ہیں۔ جس طرح ٹی وی اور دیگر بجلی سے چلنے والی اشیاء کو بجلی کے ساکٹس میں لگایا جاتا ہے، کمپیوٹر کو چلانے کے لیے بھی بجلی کی ضرورت ہوتی ہے، لہٰذا سب سے پہلا ساکٹ جو آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں وہ کمپیوٹر کو بجلی فراہم کرنے کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے۔ اس کو پاور کنیکٹر کہتے ہیں۔ وہ تار یا کیبل جس کے ذریعے کمپیوٹر کو بجلی فراہم کی جاتی ہے، اس کو پاور کیبل کہتے ہیں۔ اس کیبل کا پلگ بجلی کے سوئچ بورڈ میں لگاتے ہیں۔ اس کیبل کا دوسرا سرا کمپیوٹر میں اس طرح لگتا ہے۔ جس طرح سسٹم یونٹ کو چلانے کے لیے بجلی کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح مانیٹر کو چلانے کے لیے بھی بجلی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے لیے بھی پاور کیبل استعمال کی جاتی ہے۔ اب آپ جو پورٹ دیکھ رہے ہیں اسے یو ایس بی پورٹ کہتے ہیں، یعنی یونیورسل سیریل بس۔ بہت سی ان پٹ آؤٹ پٹ ڈیوائسز مثلا ویب کیم، اسکینر، پرنٹر، ماؤس، کی بورڈ کو سسٹم یونٹ سے کنیکٹ کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ کچھ کمپیوٹرز میں یہ کمپیوٹر کی اگلی اور پچھلی دونوں سائڈز پر ہوتی ہیں۔ یہ دیکھیے، اس کو
इस तरह से कनेक्ट किया जाता है। कंप्यूटर्स में माउस और कीबोर्ड की पिन इस तरह की भी होती है। कुछ कीबोर्ड या माउस को सिस्टम से कनेक्ट करने के लिए ये पोर्ट्स इस्तेमाल करते हैं। माउस की पिन को इसमें लगाने से कंप्यूटर माउस के साथ कनेक्ट हो जाता है। इसे इस तरह लगाते हैं। ये पोर्ट जो आप देख रहे हैं इसको सीरियल पोर्ट कहते हैं। इसे गौर से देखें तो इसमें आपको 9 पिन्स नजर आएंगी। यहाँ पर भी स्कैनर और माउस वगैरह लगाए जाते हैं। ये पोर्ट पैरेलल पोर्ट कहलाती है। इसमें 25 होल्स होते हैं। इस पोर्ट में कुछ तरह के प्रिंटर लगाए जाते हैं। स्क्रीन पर नजर आने वाले इन पोर्ट्स से आप जरूर वाकिफ होंगे। ये वही पोर्ट्स हैं जो आप कैसेट प्लेयर या रेडियो पर देखते हैं। बाज दफा ये कंप्यूटर्स की अगली साइड में भी दी गई होती हैं। इनको पिन सॉकेट्स कहा जाता है और कैसेट प्लेयर की तरह कंप्यूटर में भी ये स्पीकर्स या माइक्रोफोन्स लगाने के लिए इस्तेमाल होती हैं। बाज स्पीकर यूएसबी पोर्ट के जरिए भी सिस्टम के साथ कनेक्ट किए जाते हैं। इस वक्त आप जो पोर्ट देख रहे हैं ये भी एक पैरेलल पोर्ट है। इसमें मॉनिटर की वायर कनेक्ट की जाती है। हमने अब तक सिस्टम यूनिट के बैरूनी हिस्से के मुतालिक सीखा है। चलिए इसके कुछ एक्सरसाइज कर लें। हार्डवेयर एक्सरसाइज 1। इस वक्त आपको सिस्टम यूनिट की अगली साइड नजर आ रही है। आपको हिदायत के मुताबिक इस साइड के मुख्तलिफ पार्ट्स की निशानदही करनी है। निशानदही करने के लिए अपने माउस को इस जगह ले जाकर क्लिक करें। कंप्यूटर को ऑन करने के लिए जो बटन इस्तेमाल होता है उसकी निशानदही करें। डीवीडी रोम कहाँ इंसर्ट की जाती है? स्पीकर को सिस्टम के साथ कनेक्ट करने के लिए पोर्ट की निशानदही करें। फ्लैश ड्राइव कहाँ लगाई जाती है? शाबाश! आपने सिस्टम यूनिट की अगली साइड पर लगे मुख्तलिफ हिस्सों को बखूबी पहचान लिया है। हार्डवेयर एक्सरसाइज 2। अब हम हार्डवेयर की दूसरी एक्सरसाइज करते हैं। अब आप स्क्रीन पर सिस्टम यूनिट की पिछली साइड देख रहे हैं। इसके साथ ही आपको कुछ कनेक्टर नजर आ रहे हैं। आपने हिदायत के मुताबिक इन कनेक्टर्स को ड्रैग करके इनकी दुरुस्त पोर्ट्स में लगाना है। सबसे पहले आप मॉनिटर के कनेक्टर को सिस्टम यूनिट में लगी मॉनिटर की पोर्ट में लगाएं। अब आप माउस की पिन को सिस्टम यूनिट में उसकी मुकर्ररा जगह पर लगाएं। अब आप कीबोर्ड की पिन को भी सिस्टम यूनिट के साथ अटैच कर लें। तो चलें फिर प्रिंटर को सिस्टम यूनिट में उसकी मुकर्ररा जगह पर लगाएं। जी जनाब, उम्मीद है आपने सिस्टम यूनिट की पोर्ट्स और कनेक्टर्स को पहचान लिया होगा। अभी तक आपने सिस्टम यूनिट के बैरूनी हिस्से को जाना है। आइए अब हम इसके अंदरूनी हिस्से को भी देखते हैं। सिस्टम यूनिट के अंदर जहां हार्ड ड्राइव और डीवीडी रोम लगाई जाती है, इस हिस्से को ड्राइव बे कहते हैं। अगर आप सिस्टम यूनिट के आखिरी हिस्से में देखें तो आपको एक छोटा सा डब्बा नजर आएगा। इस डब्बे को पावर सप्लाई कहते हैं क्योंकि इसके जरिए कंप्यूटर के तमाम हिस्सों को बिजली फराहम की जाती है। आप देख रहे हैं कि पावर सप्लाई से निकलकर कुछ तारें एक बड़े से बोर्ड की तरफ जा रही हैं। ये तारें कंप्यूटर के मुख्तलिफ हिस्सों को बिजली फराहम करती हैं। हर डिवाइस के साथ कुछ तारें लगी होती हैं। ये तारें सिस्टम यूनिट में लगे हुए एक बड़े से बोर्ड में जाकर लगती हैं। इस बोर्ड को मदरबोर्ड कहते हैं। इसे मदरबोर्ड इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये कंप्यूटर के मुख्तलिफ हिस्सों के दरमियान ताल्लुक कायम रखने का काम करता है। मदरबोर्ड पर मौजूद इन मकामात को स्लॉट्स कहा जाता है। मदरबोर्ड में ही आपको छोटे छोटे बोर्ड्स नजर आ रहे हैं। इन बोर्ड्स को इंटरफेस कार्ड्स का नाम दिया जाता है। इनको मदरबोर्ड के स्लॉट्स में लगाया जाता है और जरूरत न होने पर निकाला भी जा सकता है। कंप्यूटर में सिस्टम यूनिट के बाहर जो डिवाइसेस लगती हैं उनसे काम लेने या कम्युनिकेट करने के लिए ये इंटरफेस कार्ड्स ही इस्तेमाल होते हैं। मसलन आप जानते हैं कि हम आवाज सुनने के लिए स्पीकर्स का इस्तेमाल करते हैं। सिस्टम यूनिट के अंदर जो कार्ड स्पीकर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए इस्तेमाल होता है उसे साउंड कार्ड कहते हैं। इसी तरह जब हम एक से ज्यादा कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करते हैं तो हम कहते हैं कि ये नेटवर्क बन गया है। एक कंप्यूटर को
दूसरे कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए जिस इंटरफेस कार्ड की जरूरत होती है उसे नेटवर्क कार्ड कहते हैं। अब आप मदरबोर्ड पर लगे जिस डिवाइस को देख रहे हैं वो प्रोसेसर कहलाती है। इसे कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं। जिस तरह इंसान का दिमाग उसके तमाम अफ़ाल को कंट्रोल करता है, इसी तरह कंप्यूटर में होने वाले हर काम के लिए हिदायत सिस्टम यूनिट में लगा ये प्रोसेसर ही फराहम करता है। प्रोसेसर के ऊपर एक छोटा सा पंखा लगा हुआ है जो प्रोसेसर को ठंडा रखने के लिए इस्तेमाल होता है। क्योंकि जब कंप्यूटर इस्तेमाल होता है तो प्रोसेसर गर्म होता रहता है और अगर इसे ठंडा ना किया जाए तो ये खराब हो सकता है। रैम चिप्स, जिसके बारे में आप पहले ही जान चुके हैं, ये भी मदरबोर्ड पर ही लगती हैं। मदरबोर्ड पर जिस जगह रैम चिप लगाई जाती है इसे रैम की स्लॉट्स कहते हैं। आपने सिस्टम यूनिट के बारे में एक मुख्तसर सा तारुफ देखा। इससे पहले हम इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में भी पढ़ चुके हैं। आइए देखते हैं कि ये सारी चीजें मिलकर किस तरह काम करती हैं। आप कंप्यूटर को जो भी डेटा इनपुट करते हैं वो सबसे पहले मेमोरी में जाकर टेम्परेरीली स्टोर होता है। फिर ये डेटा मेमोरी से प्रोसेसर में जाता है और प्रोसेसिंग होती है। फिर जो रिजल्ट्स निकलते हैं वो मेमोरी में स्टोर होते हैं और साथ ही आउटपुट डिवाइसेस के जरिए डिस्प्ले होते हैं और साथ ही अगर हम चाहें तो किसी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस यानी डिस्क्स वगैरह पर स्टोर भी कर सकते हैं। इस तरह हम कंप्यूटर से बहुत से मुफीद काम ले सकते हैं। समरी। इस लेसन में हमने कंप्यूटर हार्डवेयर के दीगर अहम हिस्सों के बारे में मालूमात हासिल की, मसलन सिस्टम यूनिट और इसके सामने लगी लाइट्स और बटन्स। फिर हमने देखा कि सिस्टम यूनिट के पीछे कौन कौन सी मुख्तलिफ पोर्ट्स होती हैं, जिसमें सीरियल पोर्ट्स, पैरेलल पोर्ट्स, यूएसबी और कुछ पिन सॉकेट्स शामिल हैं। इसके बाद हमने देखा कि ड्राइव बे क्या होता है और उसके अंदर मुख्तलिफ स्टोरेज डिवाइसेस कौन सी लगती हैं। आपने सिस्टम यूनिट के अंदर लगी पावर सप्लाई को देखा। फिर आपने मदर पोर्ट और उस पर लगी दूसरी चीजें, कार्ड्स, स्लॉट्स, रैम स्लॉट्स, प्रोसेसर और उस पर लगे फैन को देखा।